Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, our book Flamingo's fifth chapter, Indigo, by Louise Fischer. First of all, before beginning our chapter, we will discuss our author, Louise Fischer. He was born in 1896 in USA. He started his career as a school teacher, and then later he became a famous journalist. He wrote for many editions like the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of faculty at Princeton University. He came to India in May 1942 and he stayed in India for about 2 months. During his stay, he lived with Gandhi ji in his ashram for about a week. And at that time, he talked with Gandhi ji, and Gandhi ji told him various incidents. After that, he wrote a biography of Gandhi ji named 7 Days with the Mahatma. In his book, he described Gandhi ji's life in the ashram. He also described his likes and dislikes in a very touching way. In his book, he described Gandhi ji as a very cultured, able, always refreshing and sweet person. He described wonders of Gandhi ji's personality in the book, right? So these are all the points about Gandhi ji. Gandhi ji's author by Louise Fischer. The following excerpt, जो आपका चैप्टर है इंडिगो, ये आपका एक एक्सर्प्ट है जो उन्होंने बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा, उसमें से एक पार्ट लिया गया है. And it reviewed as one of the best ever written on Gandhiji by Times Educational Supplement. This book has been regarded as one of the best book ever written on Gandhiji, right? And in this chapter, this chapter is having a theme. It tells us about the effective leadership. It is telling about the effective role of effective leadership that help us to improve, to overcome any problem. And in this chapter we will see how Gandhiji's effective leadership help won justice for the poor sharecroppers of Champaran. So let's start our chapter. In this chapter we see, from the beginning we see that the narrator is here, Louise Fischer. Louise Fischer, I have already told you that he met Gandhiji in 1942 and he stayed with him for about a week. In the beginning, we see that Louise Fischer is telling us that he met Gandhiji in 1942 at his ashram in Sevagram, and he told him how and why he decided to disobey the British in 1917. इस चैप्टर की बिगनिंग में ही हम देखते हैं कि कैसे जो हमारा ऑथर है लुईस फिस्चर, वो 1942 में गांधी जी से मिलता है और वो लगभग एक वीक के लिए गांधी जी के साथ रहे. और उन्होंने बताया कि गांधी जी ने उनसे बातों के दौरान बताया कि कब गांधी जी को ये फील हुआ कि ब्रिटिशर्स को अब इंडिया को छोड़कर चले जाना चाहिए, एंड इट वाज इन 1917, राइट. सो इन द बिगनिंग, लेट्स मूविंग फर्दर. First we see that Rajkumar Shukla, a poor sharecropper, wished to meet Gandhiji to complain about the injustice of landlord system in Champaran. यहाँ ये जो स्टोरी है जो गांधी जी ने बताई, उसमें राजकुमार शुक्ला थे जो कहाँ से बिलोंग करते थे, चंपारण से. और चंपारण में जो है उस समय क्या सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, शेयर क्रॉपिंग का. और इसीलिए जो राजकुमार
राजकुमार शुक्ला भी एक पुअर शेयर क्रॉपर था एंड ही विश टू मीट गांधी जी। वो गांधी जी से मिलना चाहते थे और किस लिए? टू कंप्लेन गांधी जी अबाउट हिज कंप्लेन गांधी जी अबाउट द injustice of landlord system in Champaran. And but Gandhi ji was very busy at that time. He had various prior appointments, so he denied. लेकिन जो आप देखोगे कि राजकुमार शुक्ला जो है he was very resolute, he was very determined and he followed गांधी जी everywhere. गांधी जी जहाँ भी गए वो उनके पीछे पीछे घूमते रहे और इसीलिए उन्होंने फाइनली जब वो एक बार उनके आश्रम में पहुँचे तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, और एंड ही सेड दैट आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। और इसीलिए गांधी जी जो है उनकी टेनेसिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे एंड फाइनली ही फिक्स्ड अ शेड्यूल। उन्होंने कहा कि आप कुछ समय के बाद जो है कलकत्ता आना और मुझे वहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाना, राइट। एंड अप टू दैट पॉइंट वी सी दैट शुक्ला जो है वो कुछ महीने के बाद ऐसे ही जो है कुछ महीने बीत गए और शुक्ला जो है वो अपॉइंटेड स्पॉट पर बैठा हुआ था। ही वॉज ऑलरेडी देयर एंड वॉज वेटिंग फॉर गांधी जी इन कलकत्ता एंड गांधी जी अराइव्ड देयर। और जब तक गांधी जी फ्री हुए उसके बाद जो है वो गांधी जी के साथ शुक्ला accompanied गांधी जी एंड रीच्ड पटना टू मीट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनके वो प्रेसिडेंट बने थे और बाद में आप ये जब जानते होंगे कि वो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। वो उस समय पटना में रहते थे और राजकुमार शुक्ला जो है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो गांधी जी को कहाँ पर लेके जाएंगे, वो राजेंद्र प्रसाद से मिलवाने लेकर जाएंगे who lived in Patna. So before moving to Champaran, they went to Patna to meet Dr. Rajendra Prasad, but Dr. Rajendra Prasad was not there at that time. He was not at home and he was out of town, right? सो इसके यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या होती है कि इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है जो कई बार आपसे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। और वो क्या था कि वहाँ पर जो सर्वेंट्स थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में, वो ऑलरेडी शुक्ला को जानते थे, राजकुमार शुक्ला को वो जानते थे क्योंकि राजकुमार शुक्ला जो है वो एक पीजेंट था, एक शेयर क्रॉपर था और वो बार बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने आता रहता था, जिससे कि वो किस सिलसिले में, शेयर क्रॉपिंग के सिस्टम के बारे में मिलने के लिए। तो सर्वेंट्स जानते थे राजकुमार शुक्ला को कि वो एक पुअर शेयर क्रॉपर है। और जब गांधी जी शुक्ला के साथ गए तो गांधी जी जो थे वो बहुत ही सिंपल से थे अपनी ड्रेसिंग में, अपनी अपीयरेंस में, और वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता नहीं मानते थे। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जो सर्वेंट्स थे उन्होंने जो है गांधी जी को भी एक पुअर शेयर क्रॉपर समझ लिया था, एक पुअर पीजेंट समझ लिया था और उन्होंने उनको भी द बैठने के लिए कहा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है कि दैट हाउ डिड गांधी जी ट्रीट एट द हाउस ऑफ या एट द होम ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। एंड मूविंग फर्दर, इसके बाद जो है जो राजकुमार शुक्ला है वो कहाँ पर जाते हैं, देन दे डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर टू गेट डिटेल्स अबाउट चंपारण शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, राइट। गांधी जी जो थे उन्हें पता था कि शुक्ला जो है वो एक इलिटरेट फेलो है और शायद वो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए थे शेयर क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि सीधे वो चंपारण जाने के बजाय कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे और वहाँ पर जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है शेयर क्रॉपिंग के बारे में कलेक्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम देयर ही सेंट टेलीग्राम टू JB कृपलानी, जिनको वो शांति निकेतन के समय से जानते थे, और उन्होंने उनको एक टेलीग्राम कर दिया था। और JB कृपलानी जो है वो गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर मिलने भी आते हैं और वहाँ पर वो किसके घर पे रहते हैं, प्रोफेसर मलकानी के घर पे रहते हैं जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे।
गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे। और इस यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट ये है कि उस समय जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, किस बात से कि कोई होम रूल को फेवर करता है, जो स्वराज को फेवर करता है, होम रूल को फेवर करता है, उसको उसके प्रति सिंपैथी दिखाने के लिए ये लोग जो है वो काफ़ी सपोर्टर्स से वो इस चीज़ से डरते थे, क्योंकि ये सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। लेकिन जे.बी. मलकानी जो है वो उन्होंने गांधी जी को ना केवल सपोर्ट किया बल्कि उनको कुछ दिन अपने घर में भी रखा। एंड आफ्टर दैट द न्यूज़ ऑफ गांधीज अराइवल स्प्रेड, शेयरक्रॉपर्स गैदर्ड इन लार्ज नंबर टू मीट देयर चैम्पियन। और इसके बाद जो है गांधी जी के अराइवल के बारे में न्यूज़ जो है वो चंपारण तक पहुंच चुकी थी, और शेयर क्रॉपर्स जो थे वो उनसे मिलने के लिए वो कहाँ पहुंचने लगे थे, वो मुजफ्फरपुर तक आने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनकी हेल्प के लिए है कोई आ गया है, एंड इट वाज महात्मा गांधी। इन मुजफ्फरपुर गांधी जी ऑल्सो मेट सम लॉयर्स, जो थे जो किस चीज़ को देख रहे थे, वो जो शेयर क्रॉपर्स का केस लड़ रहे थे कोर्ट में, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने जो है पूछा उनसे कि वो क्या फ़ीस चार्ज कर रहे हैं शेयर क्रॉपर से। और जब उन्होंने बताया कि वो कितनी फ़ीस ले रहे हैं तो गांधी जी जो है ही चाइडेड दैम, ही स्कॉल्डेड दैम फॉर चार्जिंग वेरी हाई फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। और इस समय इस मोमेंट पर ही गांधी जी ने जो है वो उन लॉयर्स को बता दिया था कि जो पीजेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा क्रश्ड हैं और फियर स्ट्राइकन हैं कि उनके केसेस को लो कोर्ट में ले जाना ही केवल हल नहीं है। यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया कि जो अगर हम शेयर क्रॉपर्स को रियली में रिलीफ दिलाना चाहते हैं तो हमें उनको सबसे पहले जो फियर है उनके दिलों में, जो डर है उनके दिलों में ब्रिटिशर्स का, वी शुड मेक देम फ्री फ्रॉम दैट फियर।